بلیٹن کے آغاز میں خبر ہے آزاد کشمیر کے حلقے LA-15 باغ ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق سردار ضیاء القمر نے 5270 ووٹوں کی برتری سے نون لیگ کے مشتاق منہاس کو شکست دے دی۔ آصف علی زرداری نے اپنے امیدوار کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، پہلے بھی پاکستان کو بچایا ہے، اب ہم اسے سنواریں گے۔ باغ کے ضمنی الیکشن میں تیر چل گیا، ضیاء القمر کی جیت پر حامیوں کا جشن۔ ضمنی الیکشن کے غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار ضیاء القمر نے 25,755 ووٹ حاصل کیے۔ دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون کے امیدوار مشتاق منہاس رہے، جنہوں نے 20,485 ووٹ کی۔ سال 2021 کے عام انتخابات میں اس نشست پر جیتنے والی جماعت تحریک انصاف کے امیدوار کرنل ریٹائرڈ راجہ ضمیر 4,924 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ یہ نشست سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی عدالت سے نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔ حلقے میں مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ 50% سے زائد رہا۔ الیکشن کے نتائج پر سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی کراچی سے کشمیر تک ایک زندہ حقیقت اور وفاق کی علامت ہے۔ نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ شرپسندوں کو انجام تک نہ پہنچایا تو پھر کل یہ سیاستدانوں کے گھروں تک بھی پہنچیں گے۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا باضابطہ اعلان جہانگیر خان ترین نے عبدالعلیم خان کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کیا۔ عمران اسماعیل، علی زیدی، فواد چودھری، عامر کیانی، سردار تنویر الیاس، فردوسہ شیخاوان، مراد راز سمیت PTI کے سابق ارکان اسمبلی بھی موجود تھے۔ نئی جماعت کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین نے کہا کہ تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جذبے کے تحت PTI میں شامل ہوا تھا، اس کو مضبوط سیاسی قوت بنانے کے لیے دن رات جدوجہد کی۔ PTI احتساب کا نعرہ لگا کر وجود میں آئی تھی۔ بدقسمتی سے معاملات ویسے نہ چل سکے جیسے ہم چاہتے تھے، لوگ ہم سے بد دل ہونا شروع ہو گئے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات نے پاکستانی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میں اپنے دل کی گہرائی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دل کی گہرائی سے، کہ اگر ہم نے 9 مئی کے مطلوبہ سازوں اور شرپسندوں کو انجام تک نہ پہنچایا تو پھر سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملہ بھی قابل قبول سمجھا جائے گا، اور یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ عبدالعلیم خان بولے، 9 مئی کے بعد لوگ فکر مند تھے، تمام دوستوں سے رابطہ کر کے مشترکہ جدوجہد کا فیصلہ کیا۔ انتشار نے ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلا ہے، اس انتشار کو ختم کر کے مستحکم پاکستان بنانا ہے۔ پاکستان کو انتشار سے دور کرنا ہے۔ پاکستان کے انتشار نے ملک کو پیچھے کی طرف تیزی سے گرا رہا ہے۔ یہ انتشار پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ انتشار پاکستان کے لیے، پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بری خبر ہے، اور ہم نے اس انتشار کو ختم کرنا ہے۔ تقریب میں شریک تمام رہنماؤں نے استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنے کا اعلان کیا۔ وفاقی بجٹ GDP کا 7.7% مالیاتی خسارے کے ساتھ تیار۔ قرض اور سود کی ادائیگیوں پر 7,300 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ دفاع کے لیے 1,800 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 430 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ FPR کے لیے 9,200 ارب کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے 6,500 ارب روپے سے زائد مالیاتی خسارے کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ تنخواہوں میں 20% اور پینشنز میں 15% اضافے کی تجویز۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 430 ارب روپے مختص، 700 ارب سے زائد کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی شرح مزید بڑھائے جانے کا امکان۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ بجٹ GDP کا 7.7% مالیاتی خسارہ کے ساتھ تیار کیا گیا۔ آئندہ مالی سال میں ملکی آمدن کا تخمینہ 9200 ارب FBR ٹیکس محصولات اور نان ٹیکس آمدن کے لیے 2800 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے، جس میں 55% سے زائد صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے۔ وفاق آئندہ مالی سال ترقیاتی منصوبوں پر 950 ارب روپے خرچ کرے گا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 200 ارب کے منصوبے شروع ہوں گے۔ صوبے ترقیاتی منصوبوں پر 1559 ارب روپے خرچ کریں گے۔ FBR پراپرٹی سیکٹر کمپنیوں کے منافع پر نئے ٹیکسز عائد کرے گا۔ بجٹ میں 18% سیلز ٹیکس کی سٹینڈرڈ شرح عائد کی جائے گی،
जबकि लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। विफाकी बजट में दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत सेहत के लिए 13 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 59 अरब रुपए से जायद का तरक्याती बजट मुख्तस किया जाएगा। 1000 सीसी से बड़ी इम्पोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटीज की शरह में इजाफा की तजवीज़ है, जबकि बजट में सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी पर सेल्स टैक्स आयद नहीं किया गया। रवा माली साल GDP ग्रोथ 0.29% रही। बरामदात में 12.1% कमी रिकॉर्ड की गई। मईशत का हजम 84,658 अरब रुपए तक पहुँच गया। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया। मुदस्सिर अली राना की रिपोर्ट। बरामदात में कमी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ मनफी रिकॉर्ड। GDP ग्रोथ सिर्फ 0.29% रही। फीकस आमदन कम होकर $1,568 पर आ गई। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे जारी। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक माली साल 2022-23 में ज़राई तरक्की 1.55%, सर्विसेज के शोबे में तरक्की की शरह 1.86% रही। रवा माली साल जुलाई से मई के दौरान महंगाई की शरह 29.2%, जबकि सन्नती तरक्की की शरह मनफी 2.94% रही। रवा माली साल के 10 माह में मालियाती खसारा GDP का 4.6%, मालियाती खसारे का हुजम 3,929 अरब रुपए रहा। जारी खातों का खसारा 3 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा। रवा माली साल के 11 माह में तिजारती खसारा 25 अरब 80 करोड़ डॉलर रहा। 10 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी 23% कमी के बाद 1 अरब 17 करोड़ डॉलर रही। गंदुम की पैदावार गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 5.4% जायद रही। गन्ने की पैदावार गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 2.8% इजाफे के साथ 9 करोड़ 11 लाख टन रही। कपास की पैदावार 41% कमी के साथ 49 लाख बेल्स। चावल की पैदावार 21% कमी के साथ 73 लाख टन रही। लाइव स्टॉक में 3.78% की तरक्की, जंगलात में 3.93% इजाफा हुआ। रवां साल 7 लाख टैक्स दहिंदगान के हदफ के मुकाबले में 9,12,000 नए टैक्स दहिंदगान रजिस्टर्ड हुए। करंट अकाउंट खसारे में 76% कमी हुई। जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारे में 40.4% और दरामदात में 29.2% कमी हुई। हुकूमत ने आइंदा बजट में IMF की शर्त पर प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया। प्रॉपर्टी सेक्टर में फाइल्स के लेन देन पर इजाफी टैक्स आयद होगा। दूसरी जानिब टैक्स आयद किए जाने के फैसले पर रियल स्टेट इंडस्ट्री की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अवैस अब्बासी की रिपोर्ट। हुकूमत का IMF की शर्त पर आइंदा बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर पर मजीद टैक्स आयद करने का फैसला। रियल एस्टेट सेक्टर की जानिब से फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इक़दाम को तामीराती शोबे के लिए ज़हर कातिल करार दे दिया। गुज़श्ता माली साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर इजाफी टैक्स नाफिज करने से इंडस्ट्री शदीद मुतासिर हुई है। मजीद टैक्स लगाया गया तो इंडस्ट्री का पहिया जाम हो जाएगा। ये जो बजट आ रहा है तो इस बजट के हवाले से कोई अच्छी ख़बर हमें सुनने को मिल नहीं रही, और उसमें भी जिस तरीके से इसको हमारे जो प्रपोज़ल्स थे, अगर उन प्रपोज़ल्स को इस बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट ना किया गया तो हमारी मजबूरी होगी कि हम अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से एफिलिएटेड तमाम इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री, इन तमाम लोगों को लेके हम इस एहतजाज करें। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बैरून मुल्क से भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होती है। नए टैक्सेस लगे तो ना सिर्फ बैरून मुल्क से सरमायाकारी रुक जाएगी, बल्कि अंदरून मुल्क से भी सरमायाकार पैसा बाहर ले जाएंगे। अगर रिलीफ देते हैं तो फ़ायदा डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान की GDP को ही होगा। पाकिस्तान के अंदर देखें फ़िलहाल हमें डॉलर की ज़रूरत है। पाकिस्तान, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर बैठे हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे या हमारे पास फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर आएगा तो डेफिनेटली हमारी इकॉनमी भी ठीक होगी। अगर तो ये मज़ीद टैक्सेस लगा देते हैं तो आपके जो भी यहाँ पे जो वेल स्टेबल भी बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। टैक्स जब से बढ़ा रहे हैं तो रियल एस्टेट में हमारे बिज़नेस में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ठीक है, पहले अगर बिज़नेस हम लोग करते थे तो हमारी जो सी परसेंटेज थी फाइल्स की, जो सी हम लोग सोसाइटीज़ वगैरह में प्लॉट्स वगैरह बेचते थे, 70 to 80% हमारी चीज़ें सेल होती थी। ठीक है, एक मंथ में। अब वही परसेंटेज आपकी आ गई है 20-30 के ऊपर। ठीक है, और दिन ब दिन रियल एस्टेट का बिजनेस थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है। रियल एस्टेट नुमाइंदों का कहना है कि अगर बजट में मजीद इजाफी बोझ डाला गया तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। लग्जरी आइटम्स पर टैक्स में इजाफे की खबरों से सिन्फ नाजुक की परेशानियां बजट से पहले ही बढ़ने लगी हैं, जिनके लिए कपड़े और मेकअप महंगे होने के खौफ ने खतरे की घंटी बजा दी है। इस्लामाबाद से हरीम जदून की रिपोर्ट।
बजट में लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ने का इम्कान। खवातीन के सजने संवरने के सामान की कीमतें भी भरेंगी उड़ान। बजट के बाद महंगाई में मजीद इजाफे की खबरों से खवातीन परेशान। खबर गर्म है कि बजट के बाद मेकअप के सामान हो या शैम्पू और ब्यूटी पार्लर क्रीमें सब होंगी महंगी। हेयर कलर्स, डायर्स और इम्पोर्टेड कपड़ों तक हर शय पर लग्जरी टैक्स लगेगा। और इन खबरों से कम सिन लड़कियां हो या खवातीन, सिनफे नाजुक का हर फर्द है परेशान। इतना ज़्यादा कपड़ों की प्राइसेस नहीं होती जितने टैक्सेस लग जाते हैं। अगर कोई कपड़े लेट सपोज कोई कुर्ता हम दे रहे हैं 2-3 हज़ार का, तो ऊपर 1000-1500 टैक्स लगा होता है, तो इन्हें एटलीस्ट टैक्स कम करने चाहिए। काइंडली जो है हमारे लिहाज से थोड़ा बजट कम करें, क्योंकि हमने भी आगे इसको अवेल करना है, क्योंकि हमने जाके शॉपिंग करनी है, और तो हमारे लिए बहुत मसला होगा। लड़कियां तो लाजमी है ना, लड़कियों का तो हुस्न ही सब कुछ होता है ऑब्वियसली। तो हम तैयार होते हैं, अपने आप को खुश करते हैं, अब ये उस खुशी को भी हमसे छीनना चाह रहे हैं, तो भाई ये बहुत गलत बात है। इसलिए मुझे लगता है कि अच्छे जो मेकअप हैं उनको ख़रीदना चाहिए। और जब मैंने रिसेंटली जब ख़रीदा है तो 60,000 तक का मुझे पड़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इनको चाहिए कि कुछ टैक्सेस और कुछ चीज़ें कम करें तो हमें ये रिजनेबल पड़ सके। जहां बढ़ती हुई महंगाई के तूफान ने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है, वहीं खवातीन की परेशानी भी बजा है। बनाव सिंगार की शौकीन लड़कियां इस महंगाई के तूफान से बच गईं तो ही सजना सवरना भी होगा मुमकिन। खवातीन का कहना है कि कपड़े और मेकअप तो बनाव सिंगार का लाजमी जुज है। अगर कपड़ों और कॉस्मेटिक्स की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी तो उनके लिए अपने हुस्न को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन मून आकिब के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। आइंदा वफाकी बजट में इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़ दे दी गई, जिसके नतीजे में महंगे इम्पोर्टेड मोबाइल मज़ीद महंगे होने का इम्कान है। महंगे फ़ोन के शौकीन अफराद पर एक और बम गिरने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने का फैसला। आम आदमी के लिए स्मार्टफोन ख्वाब बनने लगा। आने वाले बजट में $500 से महंगे फोन पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 25%, $350 से $500 तक मालियत के फोन पर GST 17% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। $100 से जायद मालियत के फोन पर भी ड्यूटी बढ़ाने का इम्कान है। जैसे हालात जा रहे हैं, लगता है हम हाल ही वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमने मार्केट रेट्स पता किए हैं, बड़ी हमारी रेंज से बाहर जा रहे हैं। और हम हुकूमत से गुजारिश रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्लीज़ हमारा ख्याल रखें, स्पेशली स्टूडेंट्स का। स्मार्टफोन लेना आम आवाम के उससे बाहर हो जाएगा, वो नहीं ले सकता कभी भी। आजकल आपको पता है कि हर इंसान की मोबाइल फ़ोन जो एंड्रॉयड फ़ोन है, हर इंसान की ज़रूरत है। जब तक टैक्स थोड़ा नॉर्मल था, पीटीए टैक्स, अब जब से पीटीए टैक्स 2 लाख रुपए का हो गया तो कोई भी बंदा फ़ोन नया ना परचेज़ करता है, ना बाहर से कोई मंगवा सकता है, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव पड़ता है, किसी का बजट नहीं है। अवाम परेशान, जिनका कहना है कि अगर यही हालात रहे तो बटनों वाला फ़ोन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। मोबाइल फ़ोन ज़रूरत के साथ साथ तफरी का भी अहम ज़रिया बन चुका है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कुछ रहम करे और मोबाइल फ़ोन महंगे करने की बजाय सस्ते कर दिए जाएं। कैमरामैन मून आकिब के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। कारोबारी अहवाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 42,000 की सतह बरकरार न रख सका। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी और ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हुआ। फी तोला सोने की कीमत में 2300 रुपये कमी हुई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की जानिब से हज़स की फरोख्त का रुझान रहा। इख्तिताम पर मार्केट 456 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,686 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे कमी के बाद 286 रुपए 81 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए इजाफे से 303 रुपए पर फरोख्त हुआ। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक बिगड़ती माशी और सियासी सूरत हाल के असरात स्टॉक मार्केट और रुपए की कदर पर नजर आ रहे हैं। हालात में बेहतरी के लिए हुकूमत को ठोस इक़दाम उठाने की जरूरत है। आज फी तोला सोने की कीमत 2300 रुपए कमी के बाद 2,28,100 रुपए हो गई, जबकि आलमी मंडी में सोना $24 इजाफे से $1964 फी औंस का हो गया।